Good afternoon, friends. This video on one of the important clarification issued by way of circular number 160 dated 20th September 2021 on three important topics, which is recommended by GST Council in their 45th GST Council meeting. The first one, time limit to avail credit for the debit note. And as per GST Council, it is being recommended there would be delinking of date of debit note versus date of underlying invoice. You'll be knowing that section 16 subsection 4 of CGST Act got amended by clause number 118 Finance Bill 2020 effective from 1st of January 2021. There's a time limit to avail credit. And what is that time limit? Earliest of due date. Due date of furnishing return under section 39, which is GSTR 3B for the month of September following the end of financial year, or date of furnishing annual return, whichever is earlier. Now, what is being amended? That any debit note which is pertaining to invoice, that particular line got deleted. Thereby, there would be delinking. The date of debit note would be read independent with the underlying invoice date. So, there would be delinking. So, date of debit note would be read independent of date of underlying invoice. So, to determine time limit under section 16 subsection 4, there were certain queries and representation which is being clarified in this circular 160. Two situation. Situation is, there may be a case that debit note which is being issued on or after 1st January 2021 and credit on such debit note is availed after 1st January 2021. This is a very clear-cut case. So here, if some invoice, let's say, raised on 7th March 2021, and against this invoice, you are raising a debit note on 7th of July 2021. Am I clear? So 7th March 2021 is the invoice date pertaining to 2021, but you are raising debit note on 7th of July 2021. So thereby, date of debit note would be read independent of underlying invoice. And you can avail credit because it is being issued after 1st January 2021. So credit would be available in normal situation, no problem. Problem which is coming out, जो अभी आ रही है, and it is being stated. If debit note is issued either prior to or after 1st January 2021, उस केस में क्या किया जाए? तो इस सर्कुलर में यह क्लैरिफाई किया गया कि अगर आप क्रेडिट ऑन और आफ्टर 1st January 2021 ले रहे हैं, for such debit note that has been issued either prior to or post 1st January 2021, तो आपके लिए amended provision एप्लीकेबल होगा, यानी आपको उस डेबिट नोट को अंडरलाइंग इनवॉइस के साथ इंटरलिंक्ड करने की जरूरत नहीं है. सो डेट ऑफ डेबिट नोट इज रिलेवेंट. अगर आपने क्रेडिट आफ्टर 1st January 2021 के बाद ली, पहली क्लैरिटी दी. सेकंड, अगर आपका डेबिट नोट पोस्ट 1st January 2021 इशू हुआ है और आपने क्रेडिट भी आफ्टर 1st January 2021 के बाद ली,
तो फिर कोई डिस्प्यूट है ही नहीं, इट इज डीलिंक्ड। आपको अंडरलाइंग इनवॉइस की डेट देखने की जरूरत नहीं है। डेट ऑफ डेबिट नोट इज रिलेवेंट to determine time limit to avail the credit under section 16 subsection 4. But third situation is a situation which you must know कि मान लीजिए डेबिट नोट प्रायर टू 1 जनवरी 2021 इशू हुआ और आपने क्रेडिट भी प्रायर टू 1 जनवरी 2021 ली है, तो फिर अमेंडेड प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। Then it should be rate with the date of underlying invoice, that is what it is being stated. So credit availed prior to 1st January 2021 for debit note issued prior to 1st January 2021, उसकी टाइम लिमिट आपकी डेट ऑफ अंडरलाइंग इनवॉइस से कैलकुलेट होगी। दैट इज व्हाट क्लैरिटी गिवन इन दिस सर्कुलर। तो दो एग्जाम्पल भी उन्होंने दिए और एग्जाम्पल के तहत दे हैव क्लैरिफाइड ए सिचुएशन। अलार्मिंग पोजीशन मैंने आपको बता दी, प्रायर टू 1 जनवरी 2021 अगर कोई डेबिट नोट इशू हुआ है और क्रेडिट भी आपने प्रायर टू 1 जनवरी 2021 ली है, तो उसके लिए अमेंडेड प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। देयर वुड बी लिंकिंग विद द अंडरलाइंग इनवॉइसेस। यानी क्रेडिट अगर आपने 1 जनवरी 2021 के बाद ली है तो देयर वुड बी डी लिंकिंग। डेट ऑफ डेबिट नोट इज रिलेवेंट फॉर डिटरमाइनिंग टाइम लिमिट टू अवेल क्रेडिट अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ऑफ CGST एक्ट। अब दो एग्जाम्पल जो दिए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आप भी कोशिश कीजिए उसके आंसर करने की। पहली सिचुएशन, मान लीजिए इनवॉइस 7 मार्च 2021 को इशू हुआ। 7 मार्च 2021 यानी पोस्ट 1 जनवरी 2021, और उसके अंडरलाइंग इनवॉइस के अकाउंट पे मान लीजिए मैं एक सिचुएशन क्रिएट करता हूं कि आपने 100 रुपए की इनवॉइस जनरेट की थी ऑन 7 मार्च 2021 को। अब आपको एक डिफरेंशियल इनवॉइस, डिफरेंशियल अमाउंट के लिए एक डेबिट नोट रेज करना है, लेट्स से 20 रुपए के लिए। आपने डेबिट नोट रेज किया 7 जुलाई 2021 को, यानी 2 फाइनेंशियल ईयर इसके अंदर आ गए। एक 2021 इनवॉइस के लिए, एक 21-22 फॉर डेबिट नोट के लिए। अब क्वेश्चन ये आएगा, क्या आपको अंडरलाइंग इनवॉइस के साथ इसको चेक करना है? क्लैरिटी, अगर डेबिट नोट आफ्टर 1 जनवरी 21 के बाद इशू हुआ है और क्रेडिट भी आपने 1 जनवरी 21 के बाद ली है, तो आपको डेट ऑफ डेबिट नोट देखना है, डेट ऑफ अंडरलाइंग इनवॉइस नहीं देखना। यानी नो डिस्प्यूट, क्रेडिट इज अवेलेबल एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 अर्लीस्ट ऑफ टू डेट, जो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया। सेकेंड सिचुएशन क्रिएट करता हूं। मान लीजिए आपने इनवॉइस 7 मार्च 2020 को इशू किया, यानी फाइनेंशियल ईयर 1920। सो आपका इनवॉइस कब जनरेट हुआ? 7 मार्च 2020, 100 रुपए का। अब आपने एक सप्लीमेंट्री 20 रुपए के लिए डिफरेंशियल अमाउंट के लिए एक डेबिट नोट रेज किया 7 नवंबर 2020 और आपने क्रेडिट लेनी है। अब डेबिट नोट की डेट मुझे देखनी है 7 नवंबर 2020। अब इसमें दो सिचुएशन आपके सामने आएंगी। पहली सिचुएशन कि अगर आपने क्रेडिट आफ्टर 1 जनवरी 2021 ली, तो आपकी डेट ऑफ डेबिट नोट इंपॉर्टेंट है जो आपका 2021 में इशू हुआ, यानी लास्ट डेट होगी ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 39 विच इज 20th अक्टूबर 2021 और डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न, क्योंकि क्रेडिट आपने 1 जनवरी 21 के बाद ली है। दैट इज व्हाट द क्लैरिटी गिवन इन द सर्कुलर। लेकिन अगर आपने क्रेडिट प्रायर टू 1 जनवरी 2021 ले ली, तो अमेंडेड प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी आपको जो पुराना प्रोविजन है, एंड दैट वुड बी रेड विद द डेट ऑफ अंडरलाइंग इनवॉइस,
सो यानी आपकी क्रेडिट आपने कब ली है, प्रायर टू 1 जनवरी 21 या पोस्ट 1 जनवरी 21, इज इंपॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ऑफ CGST एक्ट। मेरी सबमिशन ये क्लैरिटी के साथ ये आना था कि डेट ऑफ डेबिट नोट इज बीइंग डीलिंक्ड विद द डेट ऑफ अंडरलाइंग इनवॉइस। ये जो कंफ्यूजन है ना, क्रेडिट आपने प्रायर टू 1 जनवरी 21 ली या क्रेडिट आपने पोस्ट 1 जनवरी 21 ली, this is the dispute is never resolving and there will always be litigation. When this section 16 subsection 4 got amended as a clarificatory in nature, it should be retrospectively applicable. There should be clear-cut delinking of date of debit note versus date of underlying invoice. आप ये dispute क्यों कर रहे हैं? And then again by way of circular कि अगर क्रेडिट प्रायर टू 1 जनवरी 21 ली है तो पुराना प्रोविजन एप्लीकेबल, जहां में डेट ऑफ अंडरलाइंग इनवॉइस आप देखेंगे, और अगर क्रेडिट आपने 1 जनवरी 21 के बाद ली है तो डेबिट नोट आपका डेटेड प्रायर टू या पोस्ट 1 जनवरी 21 हो तो आपको एमेंडेड प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। इन माय हम्बल सबमिशन, this clarification is not giving the realistic way of amended provision. Why it got amended? What was the reason for that? And in my humble submission, there should be clear-cut delinking, irrespective of any time period, whether prior or post for credit availed. Date of debit note should be read as important date for determining time limit under section 16 subsection 4 of CGST Act. So circular ने कुछ कहा, मैंने आपके सामने एक्सप्लेन भी किया और मैंने अपनी बात भी आपके सामने रखी। दो और इशू क्लैरिफाई किए सर्कुलर के अंदर। सेकंड, अगर आपने ई इनवॉइस जनरेट किया है इन टर्म्स ऑफ रूल 48 सब रूल 4 of CGST rule, and e-invoice means you have generated e-invoice after uploading the same JSON file on IRP, QR code embedded on it, and QR code contain invoice reference number, electronic e-invoice. तब आपको फिजिकल इनवॉइस कैरी करने की जरूरत नहीं है while movement of goods. यानी प्रॉपर ऑफिसर वांट टू वेरीफाई, do inspection, they can check the QR code which is containing IRN number, invoice reference number. So no physical copy of tax invoice is required wherever e-invoice is generated with QR code embedded with IRN number. Third clarity, अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हैं and your export of goods and goods are subject to export duty, and you have paid export duty at the time of export, तभी आपका रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड ITC आपको नहीं मिलेगा। यानी जिस गुड्स पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी and you have paid some portion of export duty at the time of export, उस गुड्स के लिए आपको रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड ITC जो अंडर सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 ऑफ CGST एक्ट में है वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई गुड्स nil rated है बिकॉज ऑफ सेकंड शेड्यूल, nil rated एज पर सेकंड शेड्यूल इन कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 और exempted by any custom notification or not covered under second schedule of custom tariff act 1975, यानी जो गुड्स nil rated है, exempted है या not covered under second schedule of custom tariff act 1975, उस केस में एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगी बिकॉज nil rated, exempted, not covered. जब एक्सपोर्ट इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, देन देयर इज नो बार
that you can't go for refund of accumulated ITC, यानी आपको उस केस में रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड आईटीसी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मिलेगा। क्यों क्लैरिफिकेशन देना पड़ा? लिटिगेशन स्टार्ट हो गया है। कई बार निल रिलेटेड जो गुड्स हैं उसको डिपार्टमेंट ने एलीज कर दिया इट इज सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड हेंस हम आपको रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड आईटीसी नहीं देंगे। सो क्लियर कट, जो गुड्स सब्जेक्टेड टू एक्सपोर्ट ड्यूटी है और आपने एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी पे की है, तो उस गुड्स के एक्सपोर्ट के ऊपर आपको रिफंड ऑफ आईटीसी, एक्यूमुलेटेड आईटीसी अंडर सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 नहीं मिलेगा। दैट इज व्हाट द क्लैरिटी गिवन बाय दिस सर्कुलर नंबर 160 ऑन 20th September 2021, dated 20th September 2021. 3 topic clarified. I have also explained these 3 topic of this particular circular. Lot many things is being announced by GST Council in their 45th GST Council meeting. So lot of changes are supposed to come. Stay tuned. Subscribe to our website, YouTube channel for getting immediate notification whenever we are creating a video and posting for you as a GST update. So immediate to watch. Thanks for watching. Stay tuned. Thank you very much.